evening, everyone. My name is Khushi Gupta, and I am the host of today's webinar. And our today's topic is understanding emotional intelligence. And for representing this topic, we have with us Mrs. Amrita Naidu. She is the motivational speaker, also the emotional intelligence coach and career counselor. Also, and today she's gonna discuss about the work on our intelligence more. So yes, ma'am. For initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic. So over to you. Yeah. Hi, everybody. This is me, Amrita Naidu. I'll just give you a short introduction about who I am. I was from Kolkata. I was born and brought up in Kolkata. Then I moved to Pune. And after doing my master's, I did my master's in biochemistry, which is very different part. It's a very dealing with all medicine and all. Clinical biochemistry I did my master's with. And then I moved on to teaching. I always felt that I connected more with youngsters. So I went on to high school teaching. And then I started to teach UPSC IAS candidates, where I started to lecture or coach these IAS aspirants in emotional intelligence, because as the leading, magistrates or the leading foreign service experts from India, these executives, they need these kind of emotional intelligence thing. And then I felt I was doing, with my husband, I started off my new company. And I felt that I should be bridging the gap. Why only the topmost leader, the cream people are going to learn this hi-fi, quote unquote emotional intelligence? Why the others, the mass people can't learn it? So I thought that let me come down to my Instagram handle and my YouTube channel. With a very busy schedule and with a child at hand, I still started to film my short motivational videos in Instagram, in Facebook, and that's how my journey has started. I am now also giving some part-time lecture on emotional intelligence and other soft skills to many other colleges, like in this lockdown, as in Zoom calls and all. And that's my journey. Yeah, so I'm ongoing emotional intelligence person, as well as I'm learning myself EQ things, and I'm also imparting my knowledge to the masses, to the young people, to the young India. So that's who I am. And coming back to emotional intelligence, this is only one line I should say, no other explanation is needed. If we know us, that we are not beings of flesh, bones, we are beings of emotions and thoughts. If we just know this, then we are very much aware of who we are, and thus our EQ or our emotional intelligence quotient will start increasing, so we all can become highly intelligent. Okay, and that is the most important skill in 2020 and beyond. Over to you, Khushi. Exactly, ma'am. Okay. So, ma'am, first of all, I want you to explain this emotional and intelligence word together and how these two words are combined together to form as like emotional intelligence. सो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी. मैं हिंदी में स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरे सारे जो है फ्रेंड्स सुन सके. ये हम लोग जो नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं कि नवरात्रि में फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग मनाते हैं. तो एक्चुअली नवरात्रि क्या है पता है? नवरात्रि में हम लोग नवरस मनाते हैं. नवरसा मीन्स 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस. ठीक है, मैं वो सब इमोशंस के बारे में एक बार लिस्ट कर देती हूँ, शायद से आप लोगों को पता है. फर्स्ट है श्रृंगार, दैट इज लव, इमोशन ऑफ लव. फिर है हास्य, मीन्स लाफ्टर. फिर है करुणा, मीन्स कंपैशन. फिर है रुद्र, मीन्स एंगर. फिर वीरा, मीन्स करेज. उसके बाद भयंकर एंड विभत्स, टेरर एंड डिस्गस्ट. उसके बाद आता है अद्भुत, सरप्राइज, एल्यूडेड, एंड देन शांत, पीस और ट्रैंक्विलिटी. सो ये जो नवरस, 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस जो मैंने ये बताया, ये सेलिब्रेट करते हैं. एक्चुअली दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन ईस्टर्न कल्चर्स हम लोगों में ऑलरेडी है ये कि हम लोग एवरी टाइप ऑफ इमोशंस को फील करें, अवेयर हो कि हम लोगों में क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं,
और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। आप एक डॉग को देखो, सिंपल एग्जांपल, आप एक डॉग को देखो, आप उसके पूंछ पे हाथ दो तो वो आपको काटने जाएगा, राइट? जिसके पास Yes. डॉग्स होते हैं वो पता है उनको। पर अगर आपको कोई बॉडी में टच करे, आप किसी को काट दोगे इमीडिएटली? आपको No. गुस्सा आएगा, तो आपको एंग्री फील हो रहा है, तो यू आर नाउ सेल्फ अवेयर ऑफ योर एंगर। तो वो जो आपने अवेयरनेस पा लिया, अब वो आप अवेयरनेस के साथ क्या करोगे वो आपकी बारी। आप उसको काटने जाओगे, आप मारने जाओगे, या फिर आप उसको अच्छे से समझाओगे। दिस पार्ट कि आपने ये एनालाइज कर लिया कि आपका सिचुएशन क्या है और आपकी इमोशन, आपको तब क्या फीलिंग हुई। सपोज यू आर एंग्री और यू आर एक्सट्रीमली इन लव, तो आपको वो इमोशंस जो फील हो रहा है आप उसको समझ पाए और फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, तो दैट मेक्स द डिफरेंस इन आवर वर्ल्ड। सो इन आवर वर्ल्ड दिस इज व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसके पास जितना अवेयरनेस है वो उतना इमोशनली इंटेलिजेंट है। और हम लोगों को सभी में ये नवरस होता है, सब लोगों में इमोशंस होते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स पैदा ही हुए, हम लोगों की इमोशंस होते हैं, ठीक है ना? तो वी आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस। तो उनको जो है जानना बहुत जरूरी है। जनरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। बिकॉज आई डिड माई बीएड, तभी मुझे साइकोलॉजी में ये टर्म आया था। तो नेचुरली मुझे एक थोड़ा सा ये हो रही थी कि मैं क्या है जानूं, एक थोड़ा सा मुझे नॉलेज गेन करने का इच्छा हो रहा था। तो दैट इज द वे आई स्टार्टेड टू कम इनटू दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड मैं डेली अप्लाई करती हूँ, रादर देन बुकिश नॉलेज, मैं डेली मेरे जिंदगी में इसको अप्लाई कर रही हूँ और एवरी डे आई एम गेटिंग सम ऑफ द अदर रिजल्ट। और जब भी मैं कुछ चीजें अप्लाई करते रहती हूँ, मैं वो वीडियोस जो है शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वीडियो में भी देख सकते हो। या That's so great of you, ma'am. Okay, so if I talk about emotional intelligence, तो emotional intelligence 5 चीजों पे वर्क करता है और उसमें से एक चीज आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, that is self awareness. So I want you to explain the self regulation part also. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ अवेयर आई एम ऑफ माई इमोशंस। तो बेसिकली हम लोगों में, मतलब कि ईस्टर्न कल्चर में तो अभी मैंने बता दिया कि नवरस बोलते हैं। इन वेस्टर्न कल्चर्स, इन वेस्टर्न फिलोसॉफीज, हम लोग 4 टाइप्स ऑफ इमोशंस को बेसिकली फील करते हैं एवरीडे। हैप्पी, सैड, मैड, ग्लैड, बस 4 टाइप, हैप्पी, सैड, मैड, ग्लैड। तो अगर आपने 4 टाइप के इमोशन के बारे में अवेयर हो गए, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अवेयर, मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आप जा रहे हो। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। मैं डिप्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मेंटल इलनेस, डिप्रेशन आजकल बहुत बड़े टॉपिक है। तो मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि दे आर डिप्रेस्ड इन द मिड करियर, ठीक है ना? तो डिप्रेशन क्यों आता है? वी डोंट नो, but actually with EQ we can know it. Simply, as I told you that there are 4 emotions we regularly feel: happy, sad, mad, glad. तो जैसे ही आप बहुत सैड होते हो और आपको वो इमोशन जो है, जो बिल्डअप करते रहता है, उसके बाद जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रेगुलरली कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, अगर आप सैडनेस फील कर रहे हो, तो अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं है कि आई एम सैड और आई एम हैप्पी, और बस आप फील कर रहे हो बट आपको अवेयरनेस नहीं है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में बदलता जाएगा। सेम वे अगर आप हैप्पी हो और आप बहुत हैप्पी हो, मतलब आपको पागल जैसे, मतलब कि खुश हो, रोज ही खुश हो, तो अगर आपको कुछ भी, मतलब कि ठनक भी लगे तो आप गिर जाओगे, एकदम बिखर जाओगे, ठीक है ना? तो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस पहले होनी चाहिए। और अवेयरनेस आने के बाद ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना प्रतिशत हैप्पी होना है, कितना प्रतिशत सैड होना है, कितना प्रतिशत एंग्री होना है, कितना प्रतिशत मैड होना है। तो ये उसके बाद जो है रेगुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। बहुत सिंपल है कि अगर आपको अवेयरनेस आ गई कि हाँ मुझे ये इमोशन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको पहले अगर जान गए तो इजीली उसको रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ज्यादा चाहिए तो कुछ ज्यादा के लिए, या कुछ कम कराने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए या डिप्रेशन मैनेजमेंट के लिए, आपको पहले वो 4 इमोशंस को देखना है कि मैं कितना हैप्पी हो रही हूँ या हो रहा हूँ, कितना सैड हूँ, कितना मैड हूँ और कितना ग्लैड हूँ, ठीक है ना?
तो ये 4 होने के बाद आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेल्फ रेगुलेशन इज डेली विपासना मेडिटेशन. थोड़ा 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो शांत होकर बैठे रहिए, या फिर थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर के पास रहिए, जो सब लोग बोलते हैं. तो इजीली जो मेंटल, जो एक डिप्रेशन होता है, मेंटल इलनेस जो होती है, वो जो स्टार्ट होती है, सीडिंग होती है ना, वो धीरे 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 इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. एग्जैक्टली मैम. ओके, सो अगर मैं मेरी बात करूँ मैम, तो मैंने बहुत सारे इमोशनल इंटेलिजेंस कोचेस से बात की है, एंड वी ऑलवेज यूज टू से वन थिंग, लाइक मुझे उसका आंसर अभी तक नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू. Like empathy is the first step to enter into emotional intelligence. Why we always put light on empathy part? देखिए, I'll tell you the first thing. There is a story. एक बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्क था. He was 160 years old. If you go to Tibet, वो बुद्धिस्ट जो है होते हैं, बहुत साल बचते हैं, बहुत साल जीते हैं एक्चुअली. So there is one Western tourist guide actually. He went to that Tibet and he went and asked this Buddhist monk के मतलब कि सर और जो भी है, आप इतने साल कैसे अपने मतलब कि इतना खुशी खुशी, you don't look like 160 years old, and it's a true story. So that person answered in Tibetan language. तो वो वेस्टर्न जो आदमी था, जो अमेरिकन आदमी था, वो जब अमेरिका में जाके वो किसी ईस्टर्न लोगों को ट्रांसलेट करवाया, तो वो जो वर्ड था, दैट वर्ड मेंट कंपैशन. तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई कि दुनिया में जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, खुशी खुशी जीने के लिए, मतलब कि अ फुलफिलिंग लाइफ के लिए एक ही चीज, एक ही वर्ड काफी है, दैट इज कंपैशन. अगर आपको कंपैशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकोगे. और हम लोगों को क्या है, दुनिया में आप कुछ भी करो, आप चाहे जॉब करो, चाहे सर्विस करो, आपको करना क्या होता है, आपको सेल करना होता है. अगर आप जॉब करते हो तो आपको खुद को सेल करना होता है. कभी आप इंटरव्यू में जाओ तो जो आप इंटरव्यू दे रहे हो, दैट इज सेलिंग योरसेल्फ. या फिर अगर बिजनेस कर रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, क्या ज्वेलरी बेच रहे हो, क्या कुछ भी बेच रहे हो, सेलिंग. ओके, आइदर यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स और यू आर सेलिंग सर्विसेज, और यू आर सेलिंग योरसेल्फ एज अ सर्विस. तो जो भी कर रहे हो, आपको दूसरों को सोच के करना चाहिए. सेलिंग मतलब ही दूसरों को सोच के करना चाहिए. तो हमारी जिंदगी में हम सब वैल्यू जो है, एंटायर वैल्यू जो है, ऐड करते हैं विद कंपैशन. और ये कंपैशन दिखाने का प्रक्रिया को बोलते हैं एम्पैथी. तो अगर आपको दुख पहुंचे, तो मैं अगर ऐसे बोलूं, ओ खुशी, प्यारा बच्चा चोट लग गया, दैट इज सिंपैथी. दिस इज नॉट एम्पैथी. और अगर मैं समझ जाऊं कि आपको क्यों दुख पहुंचा, आप क्यों दुखी हो, और वो दुख मिटाने का थोड़ा सा मैं प्रयास कर सकूं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एम्पैथी. एंड अगर ये नहीं हो तो दुनिया नहीं चलेगी. बिकॉज ऑफ पीपल हु आर एम्पैथेटिक, पीपल हु आर ह्यूमैनिटेरियन, आज हमारी जिंदगी चल रही है. अगर फार्मर्स को एम्पैथी नहीं होती तो वो ग्रेन्स नहीं उगाते. अगर बिजनेस को उनकी एम्पैथी नहीं होती तो हमें कपड़े नहीं मिलते. अगर दर्जियों को एम्पैथी नहीं होती तो हमारी सूट्स अच्छे से सिल के नहीं आते. अगर मेकअप इंडस्ट्री को एम्पैथी नहीं होती तो हमारे अंदर अच्छे से लिपस्टिक, मस्कारा नहीं होते. तो एम्पैथी इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन. हमारे देवियां भी एम्पैथेटिक है, हमारे बिजनेसमैन भी एम्पैथेटिक है. तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग भी एम्पैथेटिक होना चाहिए. और एम्पैथी एज इन कंपैशन, काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीबॉडी, फीलिंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी दैट वी आर ऑल कनेक्टेड. तो ये अगर सबको हो तो खुश रहने के लिए अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही खुश हो जाओगे. Exactly that. It is always said that we should be compassionate towards other people. Exactly. Right? Yeah. Yeah. So let's move further. Ma'am, Sure. अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ, like pandemic टाइम चल रहा है, everybody is talking like hell about emotional intelligence. Like why this emotional intelligence word is so much important to universities? Emotional intelligence is actually, as I told you, it's important for everyone. First of all, if you are doing a job, basically you have to sell. You are either selling your company's products or you are selling your service. So you are selling. So we are all salesmen basically. अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको सेल करना है ना. तो सेल करने के लिए आपको जो टारगेट ऑडियंस चाहिए, वो टारगेट ऑडियंस का इमोशन समझना है.
यहाँ पे भी मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल से मुझे लगता है बच्चों को या स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता है आंसर, तो मैं एग्जांपल दे के समझ आती हूँ पूरा आज आपको, है ना. तो मैं बताती हूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल. सपोज आप शोरूम में गए और आपको सूट लेना है, जेंट सूट लेना है. तो रेमॉन्ड्स के शोरूम में गए तो आप रेमॉन्ड्स खरीदोगे या किसी श्यामलाल के शोरूम से श्यामलाल की कपड़े खरीदोगे? कौन सा खरीदोगे? सपोज दोनों का ही प्राइस सेम है रेमॉन्ड्स के, क्यों? या फिर सियाराम के, क्यों? क्योंकि आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है. आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, रेमॉन्ड्स बताते हैं द कंप्लीट मैन. दैट गिव्स एन इमोशन ऑफ अ कंप्लीट मैन. एक मैन को क्या चाहिए, एक जेंटलमैन को क्या चाहिए? एक फैमिली चाहिए, अच्छा सा कपड़ा चाहिए, अच्छा गाड़ी, मतलब उनके शौक की चीजें पूरी होनी चाहिए. तो वो जो है इमोशन जो है उनके एडवर्टाइजमेंट में इतना उभर के आया है कि मैं, अगर मेरे पास 10,000 की सूट खरीदने के पैसे हैं तो मैं 10,000 की रेमॉन्ड्स खरीदूंगी, मेरे कोई लोकल शॉप के नहीं खरीदूंगी. तो जो ब्रांडिंग है, ये जो सेल्फ ब्रांडिंग है, अभी ये बहुत जरूरी हो गया है. तो क्यों मैंने ये रेमॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया कि अभी हम लोग क्या हो गए, फिजिकली डिस्टेंट हो गए. तो अभी लोगों को अगर सेल्फ ब्रांडिंग चाहिए, करना चाहिए, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू करना है. तो अगर आपको पता नहीं है, इसके टूल्स पता नहीं है कि ब्रांडिंग कैसे करते हैं, तो आप कभी भी आपके जो है टैलेंट, आपका जो है एबिलिटीज जो है मार्केट नहीं कर पाओगे, आपके प्रोडक्ट्स मार्केट नहीं कर पाओगे. तो आपको बेचने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए भी आपके लिए ब्रांडिंग की बहुत जरूरी है. और बेसिकली जो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ब्रांडिंग चाहिए होता है. आपकी कोई भी कंपनी हो या आप कोई भी जॉब करते हो, आपको पर्सनल या प्रोफेशनल ब्रांडिंग की जरूरत होती है. तो उनके लिए जो टूल्स चाहिए, वो टूल्स इमोशनल इंटेलिजेंस के पास है. अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ, पर जैसे जैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते रहते हैं, उसके क्लासेस लेते रहते हैं, तब उनमें हम लोग प्रॉपरली वो टूल्स जो है देते हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि वो टूल्स अब अप्लाई करो जिंदगी में, आप पर्सनल ब्रांड बनाओ. अगर आपने ब्रांड में आपके इमोशंस झोंक दिए कि आपके टारगेट ऑडियंस भी इमोशन लेके, मतलब आपको पाने के लिए पागल हो गए, आपने एक कुछ भी प्रोडक्ट डाला, उसके अंदर वो इमोशन डाल दिए, ठीक है ना, तो वो इमोशंस उन लोगों को आपके सेल्स बढ़ाएगा. ठीक है. तो दैट इज द थिंग. इफ यू सी अ सेलर सेलिंग नॉर्मल थिंग्स, पुशिंग नॉर्मल थिंग्स एज प्रोडक्ट्स, कोई उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. बट इफ यू आर एक्चुअली पुटिंग इमोशंस टू दैट सेल, इमोशन टू दैट प्रोडक्ट, everybody will run to buy your product. So as Daniel Goleman said, we are not creatures of flesh and bones. We are creatures of thoughts and emotions. तो जितना आप लोगों को थॉट्स एंड इमोशन से कनेक्ट कर सकोगे, उतना ज्यादा आप जो भी ऑडियंस है, वो ऑडियंस के हिसाब से उनके पर्टिकुलर इमोशंस क्या होने चाहिए, वो अगर आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप कुछ भी कर रहे हो. अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो तो हमेशा इंटरव्यू में अव्वल आओगे. अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा बिक जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं बचा पाएगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट EQ, being an emotionally intelligent person, is kind of a high performance skill. बिकॉज जिसको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, जिसको लीडर होना चाहिए मार्केट में, उनको ये स्किल सीखना ही चाहिए. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल. या Exactly, ma'am. So as you have said about the Daniel Goleman, so yes, I am reading that book also, like Working with Emotional Intelligence. या मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट दिस बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस मीन. एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन पर्सन हु हैज ब्रॉट अप दिस कांसेप्ट इन द वर्ल्ड. नहीं एक्चुअली नहीं. जैसे कि मैं यूपीएससी पढ़ाती थी, तो डैनियल गोलमैन के पता है यूपीएससी में एक भी जगह नाम नहीं आता है. तो मैं हैरान हो गई थी कि ये तो 90s में बुक आया है, लोग इसके बारे में पागल है. इस नेम्ड एज द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस के कई सारे ऑथर्स हैं. EQ टेस्टिंग के भी कई सारे लोगों ने इसको रिसर्च करते हैं. तो ही इज नॉट द ओनली वन. आई वुड से ही इज द वन हु गॉट द फेम, कमर्शियल फेम डैनियल गोलमैन को मिला. बट काफी सारे लोग हैं जो ऑथर्स हैं, जो बुक्स राइट करते हैं, और टेस्टिंग EQ के अलग से टेस्टिंग पैरामीटर्स, रूब्रिक्स होते हैं, तो वो लोग सेट करते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट या डेफिनेटली ही गॉट द लाइमलाइट. सो हम लोग उसके बुक्स पहले पढ़ते हैं. दैट इज द थिंग. Okay, so ma'am, if I talk about emotional intelligence, so it is always said that
one should focus on food part rather than going for should exercises. जैसे कि आप कुछ बताओ इसमें, मुझे अच्छे से थोड़ा समझ में नहीं आया. So it is like कि हम सब to do list बनाते हैं. So it is always said that if you really want to work on an emotional intelligence part, तो आपको डिजिट लिस्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि आप वो जितनी मिस्टेक्स आपने पहले की है वो आप उन चीजों को रिपीट ना करो. rather than going for to do list, उसमें expectations बहुत हाई होती हैं and when a person does not meet that expectation, so we are hurting ourselves. Yeah, I understood. The same thing goes that we feel our emotions as happy, sad, mad, glad. अभी सोचो कि आपने कोई टू डू लिस्ट किया. सपोज आपको वेट लूज करना है या आपको एक जॉब लेना है, आपको इंटरव्यू स्किल्स ये करना है, इंक्रीज करना है, तो आपने वो स्टार्ट किया उसके हिसाब से काम, बट आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस्ड हो जाओगे या यू फील सैड. तो एज एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन मैं डिफरेंशिएट करती हूँ कि कैसे मैं रिएक्ट करूंगी. अगर मैं नॉर्मल, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है पता नहीं है, तो मैं बस अपना काम करूंगी, फिर देखूंगी रिजल्ट नहीं आया, मैं छोड़ दूंगी, है ना. अभी एज अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन मैं देख रही हूँ कि मेरा काम पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ट्राई करूंगी, पर मेरा एंड गोल के लिए मैं सेम रखूंगी. डेस्टिनेशन में थोड़ा सा इधर उधर करूंगी, पर एंड गोल में सेम रखूंगी और हमेशा गोल ओरिएंटेड नहीं रहूंगी. मतलब कि आज मैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बताती हूँ कि एक्चुअली द वर्ल्ड हैज बिकम गोल ओरिएंटेड, but in various cultures, in Eastern cultures mainly, we are taught not to run on behind the goals. Happiness जो है एक गोल बन चुकी है. हमको हैप्पीनेस जो है बुढ़ापे में मिलना है, तो मैं पूरे दिन अपना मतलब कि जॉब करूं, ये करूं, वो करूं, क्योंकि मैं लास्ट में रिटायर होने के बाद हैप्पीनेस को पा सकूं. दिस इज नॉट द वे हैप्पीनेस कम्स. हैप्पीनेस कम्स इन द प्रोसेस. तो एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन आपके गोल सेट नहीं करके आपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है. इफ यू हैव रेड वन बुक, आई विल श्योरली टेल यू टू रीड दिस बुक, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर. बहुत उम्दा लिखा है उन्होंने. तो वो जो है बुक मतलब बेस्ट सेलर बन चुकी है. वही कारण, क्योंकि उन्होंने वही सेम ईस्टर्न फिलोसफी को लिया है और मैं भी ईस्टर्न फिलोसफी में अभी रिसर्च कर रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो एंशिएंट जो गुरुज थे वो कितने अच्छे से उन लोगों ने ईक्यू के बारे में अच्छे से समेटा था सब नॉलेज. बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा जा रहा है एक्चुअली, बट स्टिल हमें पता है कि हम लोग जो है प्रक्रिया के ऊपर वो भाव रखे, वो एक्सपीरियंस के ऊपर भाव रखे, rather than fixating us on the end goal कि एंड गोल ये होना चाहिए, मुझे ये जॉब मिलना चाहिए. जॉब मिलने से पहले आपकी स्किल्स अगर ब्रश होते रहे एवरी डे, इफ यू आर गेनिंग न्यू स्किल्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेट लॉस करना चाहिए, माधुरी दीक्षित की तरह दिखना चाहिए, कैटरीना कैफ की तरह दिखना चाहिए, उससे पहले आपका स्ट्रेंथ गेन हो रहा है कि नहीं, दैट इज द वन. दैट इज फर्स्ट थिंग. इज एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन मैं गोल्स के पीछे ना भाग के मैं अपना प्रोसेस एंजॉय करती रहूंगी. तो मुझे जो है कभी भी वो दुख नहीं होगा कि व्हाई आई एम नॉट रीचिंग द गोल एंड दैट इज दिस थिंग और दैट. और सेकेंड इज ऑब्वियसली जो सब लोग बोलते हैं, बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग. अगर मैं खुद के बारे में ना सोचूं, अगर आई डू नॉट लव माई सेल्फ, इफ आई नॉट फील ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ, तो जो है मैं कुछ भी करूं, मेरे पास लंबी लंबी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, तो भी मैं सैड फील करूंगी. अगर मैं थोड़े जो भी है मेरे पास, अगर उससे मैं ग्रेटफुल नहीं फील करती हूँ, देन इट्स अ टफ टाइम फॉर एवरीवन. एंड ये दिस हैज बिकम द नॉर्म. वी फील लाइक सक्सेस मतलब कि आपके पास घर मतलब भर के कपड़े होना चाहिए, कैश होना चाहिए, गाड़ियों की लाइन लगनी चाहिए, वही हमारे लिए सक्सेस हो गया है. But after all, just ask few people, successful people, are they really happy? Okay, so that is the thing. We have to start becoming happy by the process. जो हम इंसान हैं 4 दिन के लिए तो आए हैं. अगर इतने में भी हम लोग सैड रह जाए, it's okay to feel sad. I'm not telling के कभी भी दुखी मत रहो. It's okay, but be grateful to your negative emotions. This is the most important thing. हम लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब हो गई है, मेरी जिंदगी इसमें ये हो गई, मेरी जॉब चली गई है. बट यू आर अलाइव इन दिस प्लैनेट राइट नाउ. दोज हु आर लिसनिंग, नन ऑफ अस आर डेड. सो वी आर अलाइव राइट नाउ. सो बी ग्रेटफुल दैट यू आर ब्रीदिंग, एंड इफ यू आर ब्रीदिंग यू कैन चेंज थिंग्स.
यू कैन चेंज योर वे ऑफ लाइफ, और ये आप कर सकते हो। सही ज्ञान आपको अगर मिले, सही आपने नॉलेज अगर ले लिया, सही आपने नॉलेज अप्लाई कर लिया, तो आपको अपने जिंदगी चेंज करने में, अपने ट्रेजेक्टरी चेंज करने में कोई नहीं रोकेगा। तो मैं एक ही बात बोल रही हूँ, आपके जो क्वेश्चन था, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, टू डू लिस्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर अगर आपको मतलब कि जो इंटेंडेड रिजल्ट्स है वो अगर नहीं आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट के पीछे मत भागिए। आप रेगुलरली आपने क्या गेन किया, क्या नॉलेज गेन किया, क्या स्ट्रेंथ गेन किया, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपने जो रिजल्ट्स मिला आपको उसमें ध्यान दीजिए, और उस हिसाब से एटॉमिक लेवल पे इंक्रीज कीजिए। आपको एक एक जगह आपके नुक्स एंड कॉर्नर्स को पॉलिश करते रहिए। एक दिन वो कंसिस्टेंसी आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। या Exactly, ma'am. This answer was so very insightful, and I must appreciate this one. थैंक यू। And so, ma'am, if I talk about emotional intelligence people, so those who are emotionally intelligent necessarily means that they are mentally or emotionally dead. I should say that no. I should say you have to fight the most negative spirits to understand the difference between negative and positive. अगर आपने दुनिया में, जिंदगी में हमेशा खुश मतलब कि हैप्पीनेस देखी हो, तो क्या आप कभी आप समझ में आओगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? गौतम बुद्धा को उसके फादर ने, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेसी, हमेशा से उनको जो है राजमहल में रख दिया, उनको राजकुमारी के साथ ब्याह दिया, और हमेशा से उनको जो है वेल्थ और खुशी दिए। पर गौतम बुद्धा ने लास्ट में जो 3 चीजें देख लिए, दुख के और सैडनेस के जो है, तो वो देख के उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन वी कैन गेट हियर, कि आपको नेगेटिव इमोशंस, आपको नेगेटिव जो है इमोशंस फील करने चाहिए। दैट इज द व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस नवरस। नवरस में सारे रस अच्छे लिए नहीं है, देयर आर नेगेटिव थिंग्स। एंड रिमेंबर, ये एक चीज होती है कि पता नहीं बाकी लोग क्या बोलेंगे। एज अ ट्रेनर आई टेल all my students that you should feel your negative emotions strongly, you should suffer, you should cry, because आपके negative emotions आपके सबसे बढ़िया उम्दा टीचर्स होते हैं। हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट्स जितना हमको सिखाता नहीं है, उससे कई कई गुना ज्यादा हमारे नेगेटिव मोमेंट्स, हमारे जो दुख के जो समय होते हैं, वो हमको सिखा के जाते हैं। तो हमारे नेगेटिव मोमेंट्स को कभी हम लोगों को ऐसे नेगेटिव बोल के, या मैं दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड, ऐसे बोल के छोड़ना नहीं चाहिए। दे आर द टाइम दैट यू विल ग्रो, यू ग्रो आउट ऑफ पेन, यू गो आउट ऑफ पेन एंड यू ग्रो आउट ऑफ पेन। तो हमेशा ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि वी शुड ऑलवेज चूज अवर नेगेटिव इमोशंस वेरी ग्रेसफुली। सपोज किसी के घर में डेथ हुआ है, आज मेरी एक फ्रेंड की फादर को his father died, so I was very sad, but in this negative moment also, there are a lot of things to be taught. आज उन लोगों ने ये जो एक बहुत दुख के टाइम लोग बिता रहे हैं, पर फिर भी ये दुख के टाइम में उन लोगों को, उनके भाई बहन को ग्रो कर जाना है, मेंटली स्ट्रांग हो जाना है। तो जैसे कि हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को वर्कआउट करने में हेवी चीजें उठाना पड़ता है, तभी जाके हम लोग अच्छा दिखते हैं। तो सेम वे हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, मेंटली वर्कआउट करने के लिए वो हेवी डंबल्स उठाना पड़ेगा, और वो डंबल्स होते हैं नेगेटिव थिंग्स। और नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे डंबल्स। उनको जितना अच्छे से मसल बनाओगे, माइंड मसल बनाओगे, उतना अच्छे से आप नेगेटिव इमोशंस फील करोगे और उससे ग्रो कर जाओगे। नेगेटिव इमोशंस आपके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, और वो आपको ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। तो डू नॉट discourage your negative emotions. Always feel and be grateful that these negative emotions have come into your life to teach you something. So that is my view of negative emotions. Yeah. Exactly, and these negative emotions makes us more stronger. Right? Yeah. और जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, उनको नेगेटिव इमोशंस और ज्यादा आते हैं, वो और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरी बात करो तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं, पर मैं उनको तभी मैं इमोशनल इंटेलिजेंट के जितने सारे ज्ञान है सारे अप्लाई कर जाती हूँ, और सुबह से शाम तक वो अप्लाई करते करते देखती हूँ कि कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आई टोल्ड यू आई एम अ बायोकेमिस्ट स्टूडेंट, तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती रहती हूँ कि कौन सा वाला सच में काम कर रहा है, कौन सा वाला बहुत ही बेकार बकवास वाला
थ्योरी है, तो मैं सारी थ्योरी तभी के तभी ये कर जाती हूँ, खुद ही पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ बिफोर आई प्रीच. सो या, वी ऑल फील इमोशंस, वी शुड फील इमोशंस. If we don't feel emotions, we should categorize them as dead, right? Yes. Only living beings have emotions. Otherwise, so you are dead, right? So we should always feel all types of emotions. Yeah. So, ma'am, how does leadership has a vast impact on emotional intelligence? लीडरशिप तो मतलब कि अगर आप बात करो कोई भी लीडर की, आप कोई भी लीडर ले लो, उनको देख लो थोड़ा सा वो कैसे टफ सिचुएशंस को हैंडल करते, क्योंकि कोई भी लीडर की जिंदगी में टफ सिचुएशंस के अलावा कुछ नहीं आता है. लीडर्स होते ही हैं टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और जितना जो लोग टफ सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर पाएंगे उनको ही हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लीडरशिप के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट स्पाइडरमैन, मुझे पता नहीं क्यों स्पाइडरमैन का नाम आया. स्पाइडरमैन एक लाइन बोला था कि when you become powerful, you gain more responsible. With more powers comes more responsibility. Yeah, that is the line. So, अगर आप सपोज मैं आज स्पाइडरमैन बन जाऊं, तो क्या मेरी जिंदगी में सारे जो है दुख दर्द खत्म हो जाएंगे? उल्टा और बढ़ जाएंगे, राइट? तो लीडर्स जो होते हैं उनकी जिंदगी में और ज्यादा परेशानी आती है, पर वो लोग परेशानी को परेशानी के नजरिए से नहीं देखते हैं, उनके नजरिया को बदल देते हैं. तो आज मैं एक आपको चीज सिखाऊंगी, और जो सारे लोग देख रहे हैं उनको भी चीज सिखाऊंगी कि आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम जो शब्द है, प्रॉब्लम्स को आपने आपके डिक्शनरी में अलग करके कट करके वो लाइन अपॉर्चुनिटी बना देनी है. आप बोलोगे कि अरे मेरे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम शब्द को निकाल के अपॉर्चुनिटी बना दो. अभी आप बोलो अरे मेरे जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, हाय बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो वो बात है. तो अगर आपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम देखो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ना कुछ तो है ही, कभी एक प्रॉब्लम आपको जीरो अपॉर्चुनिटी में नहीं आएगा. तो वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट थ्योरी है. तो अगर आप EQ में ज्यादा हो तो आप हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अपॉर्चुनिटी की तरह देख लो. ये आपके ऊपर है, आपने कैसा अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा और आपने कैसे अपने जिंदगी की रुख बदल दिए. और फिर अब जाके जब एक्चुअल में अच्छे मोमेंट्स आएंगे, तब जाके देखना कि वो आपको नेगेटिव इमोशन था जो आपको वो ग्रो करने में मदद किया. सो देन यू विल फील ग्रेटफुल फॉर दैट नेगेटिव इमोशन. तो वही काम लीडर्स करते हैं, और लीडर्स दैट इज व्हाई बिकम लीडर्स, एंड अदर्स उसको फॉलो करते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. Exactly, ma'am. Okay, so now let's move to the another section, that is एक क्वेश्चन एक पेंट क्वेश्चन किया है, आप प्लीज पढ़ लीजिए. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया है. हाँ, हम एंटर हो जाते हैं बट एग्जिट नहीं हो पाते, होते भी हैं तो बहुत पेनफुल या बुरे. अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में, किसी का दिल टूटा है. It's okay, I understand. We are all young people, so it's absolutely normal. तो obviously देखो क्या होता है, ये बात बहुत अच्छा से मतलब कि हीरो ही, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस. क्या होता है ना, suppose you fell in love deeply, you are madly in love. Suddenly that person became indifferent to you. शादी के बाद होता ही है. अगर किसी शादीशुदा लोग हैं मेरे इसमें तो रेज योर हैंड्स. या शादी के बाद, और if you are in the relationship for quite long time, you will see this thing to happen. Now why this happens? This happens because you are not in love with yourself. Being in love with yourself, that does not mean you are self-engrossed, you are self-obsessed. Being in love with yourself means सबसे पहले आप खुद को ध्यान दो. देखो, अगर मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम मिलता तो मैं बताती, बट ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, बट फिर भी द वे यू एक्सपीरियंस लाइफ इज बाय योरसेल्फ. आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? मैं इधर हूँ? बिल्कुल नहीं. आप मुझे देख रहे हो क्योंकि लाइट आपके आंखों में जाके इधर रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन से आपके आंखों के अंदर, रेटिना के अंदर इमेज फॉर्म कर रही है. दैट मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग मी इन योरसेल्फ. आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं हूँ? बिल्कुल नहीं. आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि ऑडिटरी नर्व्स काम कर रहे हैं आपके. तो आपने आपकी दुनिया जो है एक्सपीरियंस किए सिर्फ आपसे. यू हैव एक्सपीरियंस द एंटायर लाइफ फ्रॉम योरसेल्फ. और प्यार करने के लिए कोई और मिल गया. तो फर्स्ट लव योरसेल्फ.
if you love yourself, generally मेरे parents भी ये कहते थे, and then I saw it become a very good, great line, that if you love yourself, you will love the world as it is. और अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो आप बाकी को जज करते रहोगे, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जज करते रहोगे, आपका ब्रेकअप हो गया तो आप इतना टूट जाओगे कि मतलब कि अभी संभल ही नहीं पाओगे. तो क्यों ये होता है? क्योंकि हम लोग हमको बहुत कम मायने देते हैं. If you do not love yourself, if you do not, appreciate yourself every day, you will feel betrayed every day. Every day. वो चाहे जॉब में हो, चाहे इसमें हो, जॉब में बोलोगे पॉलिटिक्स है, ऑफिस में बोलोगे ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है. वो लोग जो है, they do not understand their own self. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़ा पार्ट है टू बीइंग एप्रिशिएटिव अबाउट आवरसेल्व्स, टू लव आवरसेल्व्स. और जितना आप खुद को प्यार करोगे, खुद को प्यार करना मतलब खुद को सजना संवरना, दैट इज अ पार्ट. खुद को प्यार करना मतलब टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टू बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ. और ये बहुत बड़ा टॉपिक है. तो जितना आप अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस लेते जाओगे, उतना आप देखोगे दुनिया में आपके जो उलझने हैं वो धीरे धीरे सुलझती जाएगी. यू विल बिकम मोर सिंपल, यू विल नॉट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड लाइफ किसी को अच्छा नहीं लगता, बस फेसबुक के टैग में अच्छा लगता है इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. बट एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड लाइफ सबको स्ट्रेस देता है. तो अगर आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जिंदगी एंजॉय करनी है, कोई रहे ना रहे दैट इज देयर प्रॉब्लम. बट किसी को अगर आप अट्रैक्ट भी करना चाहोगे कि आपको वो वाले लाइफ पार्टनर चाहिए, तो पहले आप आपके वाइब्रेशंस ठीक करो, पहले आप आपको प्यार करो. यू विल बिकम इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन यू एवर कैन. एंड फिर आपको जो जैसे पार्टनर चाहिए आपको वो मिलेगा. आई होप हीरो हीर आई कैन एबल टू आंसर यू. और जितने भी यहाँ पे आशिक बंदे बैठे हैं. Yeah, he was commenting in between. Thank you so much and all this. Yeah. Okay. So now let's move to our fire round, where ma'am I'll ask you random questions and you need to relate it with the emotional intelligence part. Okay. Sure. So my first question is your two most powerful strengths. First is compassion. Second is love. That's great. Okay, so these are your two most powerful ones. Yeah, because compassion helps me grow as a leader, and love because it is the highest vibration I can ever achieve. Okay, so second is describe a time when you resolve a conflict at your workspace. I always resolve conflicts at my workspace because I think very straight. And I apply emotionally intelligent things every day. Every theory I apply. So there are many instances which should I name, but yeah, definitely I give very clear explanations and I stay very neutral. I do not judge people. Okay. So here, मैम मेरे पास एक एग्जाम्पल है. Like most of the time ऐसा होता है कि हमें कुछ और काम करना होता है, लाइक हमें स्टडीज करनी होती है, बट वही टाइम हम हमारी फैमिली के साथ स्पेंड कर देते हैं या फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर देते हैं. एंड बाद में जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो वी रिग्रेट अबाउट इट कि यार काश मैंने वो टाइम पढ़ाई में लगा दिया होता और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना किया होता. सो हाउ वी कैन मैनेज आवर इमोशनल इंटेलिजेंस ओवर हियर, लाइक इन दिस एग्जाम? Should never regret family time, क्योंकि पढ़ाई होती रहेगी, स्टडीज तो होती रहेगी. I will tell very different answer. Sorry if somebody is from I am being a teacher. I will tell कि पढ़ाई होती रहेगी. पढ़ाई तो आप बाद में भी कर सकते हो. एग्जाम्स होने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो. नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मगिंग अप इंफॉर्मेशन. बट जो भी टाइम जैसे भी जो एट प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो. नेवर रिग्रेट योर एक्शंस. इट विल नेवर लीड यू एनीवेयर यूजफुल. नेवर रिग्रेट. कुछ किया तो दम पे करो. मतलब काम किया तो करना, डरना क्या. कुछ भी करना है, डरना क्या. So I go by this way. Yeah, I never regret. Yeah, that's great. Okay, so what's that one thing which makes you angry at your workplace? Since my workplace is at home, I'm managing a kid and work from home process. I am the manager, I am the boss, I am the cook, I am the like all in one काम जो है. I feel like वो जो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट है, अकॉर्डिंग टू मी नाउ, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए बहुत गुस्सेदार है. आई रियली गेट एंग्री एट दिस टाइम. बट या देन आई समटाइम्स चेक ऑन अदर पीपल.
how difficult situations they are managing. So I become grateful that God has given me such at least a good family that they can understand my problem. They try to help me. तो try ही बहुत अच्छी है. Help हो ना हो, try ही बहुत अच्छी है. At the end, anger is a thing that you can manage when you can manage your sadness. इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. एंग्री जो होते हैं हम लोग, वो भी होता है सैडनेस की वजह से. जैसे कि हैप्पी, सैड, मैड, ग्लैड, ये 4 इमोशंस होते हैं. अगर आप बहुत सैड रहते हो किसी चीज में, तो वो सैडनेस धीरे धीरे बिल्डअप होते होते आपको एंगर में बदल जाएगा. तो अगर आप एंगर मैनेज करना चाहते हो, वो 10 काउंट करो, 20 काउंट करो, वो काउंट वाउंट कर सकते हो. बट अगर एंगर एक्चुअल में मैनेज करना चाहते हो, एक्चुअल में कम करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है कि आपका सैडनेस का जो रूट है, वो रूट कॉज ढूंढ के निकालो और उसको रेगुलेट करो. So that is the most important thing, because sadness leads to anger. Yeah, exactly. Okay, so what has been your proudest professional moment? My proudest professional moment is that when I first shot my YouTube video and everybody from my पुराने जो UPS candidates होते थे वो video देखे and they praised me like anything. They just praised me because of my initiative. And yeah, I am proud every day. I am proud of myself every day. Not in a bad way, but I am proud that I am doing some good work and enriching value for the community. That's great of you. Okay, so when did you last embarrass yourself? I embarrass every day. I embarrass myself some days when I can't do, my work. When I feel like I am not able to care for my daughter as good mothers do. तो वो जो guilt होता है वो हमेशा होता है. As I told you, we all feel negative emotions. We all break down sometimes. Without parents, मेरे parents के बिना मेरे एक बच्ची को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा difficult है. But yeah, that is my most embarrassment situation right now. But slowly I'm getting over it. Yeah. Okay, so you are passed in all my questions, and you have answered each and every question in a very ideal manner. Like yes, it's definitely like an emotional wellness coach. Okay. So thank you so much. Yeah, but basically मैं life को देखती हूँ, life को ही मैं ये करती हूँ. मैं because मैं बुकिश नॉलेज में कभी ये नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी. Being a teacher, I used to tell my students, go by your experience. As a human being, your experience will give you more benefit. क्योंकि information तो अभी AI के पास भी है, मेरे Alexa को आपसे ज़्यादा ज्ञान है. पर जो हम लोगों में जो difference है, that is consciousness और experience का, वो अलग है. That is how we can evolve. And emotional intelligence, I will say that the first step of everything, even for spirituality, emotional intelligence is the first step. Yeah. Yes, I definitely believe in this. Okay, so one of our viewers is asking, like, how to celebrate success. Celebrate success with people who give value for that success. अगर आपके सक्सेस के पीछे एक कौड़ी का भी किसी का वैल्यू है तो उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए. अगर आप सपोज मैं कंपनी की मैनेजर हूँ तो मैं हमेशा सेलिब्रेट उसी के साथ करूंगी जिन्होंने काम करके वो सेलिब्रेशन का माहौल बनाया. तो पर्सन या द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन थिंग, उनके साथ, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपको वो वैल्यू दिलाया आपके सक्सेस का, तो और हर दिन उसका सेलिब्रेशन तो हर दिन होना चाहिए मुझे लगता है. क्योंकि हर दिन किसी ना किसी का सक्सेस हो या ना हो, सक्सेस के लिए जो पाथ आपने चार्ट किया है उस पे तो आप जा रहे हो ना, तो वही सेलिब्रेट कर लो. Exactly. Okay, so lastly I wanted you to say some words about Webicon India. Okay, I really like this session and I really liked how Webicon India is doing, imparting value to the communities, imparting value to the student fraternity. And being a trainer, being a life skill trainer, emotional intelligence trainer, I felt that it is one of the most insightful, talk I have given. And I hope Webicon India does this thing for, ever. And I hope Webicon India all the best. Hope Webicon gives value to everyone every day. And we are proud of Webicon actually that this kind of initiative has been taken. So definitely you guys rock. May you guys go a long way and wish you guys all the success every day, each day.
Yeah. Thank you so much, ma'am. Okay, so now it's a wrap up time, and it's a pleasure talking to you, ma'am. And thank you so much for having this informative session with us, and all of your information was so much insightful, and I literally enjoyed talking with you. Thank you so much. Thank you so much, Kushi. Just one to mention, my name is also Kushi. My pet name is also Kushi. So thank you so much, Kushi, for giving me the happiness and me as Kushi as well. And yeah, thank you so much, Webicon, for giving us the opportunity to have words about emotional intelligence and giving us good insights. Thank you for the amazing session, all of you, and those of you who have joined. I hope you guys to meet you soon, even if it is Yes, in the ma'am. Look forward to virtual more world. sessions Yeah, with you. Yeah. sure. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye Bye. bye.